اس وقت میں ڈومریا گنج بیدولہ علاقے میں ہوں۔ یہ خوبصورت قلعہ جو آپ پیچھے ہمارے دیکھ رہے ہیں، دارالعلوم اہل سنت غریب نواز۔ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز ایک ایسا قلعہ ہے جہاں سے نہ جانے کتنے علماء، حفاظ، قرہ فارغ ہو کر پورے ملک ہندوستان میں جا کر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جی ہاں، تو آئیے آج دارالعلوم اہل سنت غریب نواز بیدولہ کا آپ کو نظارہ کرواتے ہیں۔ جب آپ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز کے گیٹ کے اندر داخل ہوں گے تو جسٹ آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک مسجد ہے جو بہت ہی خوبصورت، اور شاید جب یہ ادارہ تعمیر ہوا تبھی یہ مسجد بھی تعمیر کی گئی ہوگی، اور یہاں سامنے اس کے وضو خانہ ہے، اور یہ خوبصورت بلڈنگ غریب نواز کی ہے۔ آئیے یہاں کے جو بانی حضرت علامہ مقصود اکرم صاحب قبلہ اشرفی ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہم ادارے کے گراؤنڈ میں آ چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی دارالعلوم اہل سنت غریب نواز حضرت علامہ مولانا مقصود اکرم اشرفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہم چلتے ہوئے حضرت سے کچھ سوالات کریں گے، اور ساتھ میں دلشاد فاروقی صاحب قبلہ موجود ہیں، افضان الحق فاروقی صاحب قبلہ بھی موجود ہیں۔ تو چلتے ہوئے کچھ سوالات ان حضرات سے کریں گے اور آپ کو ادارہ بھی دکھاتے رہیں گے۔ حضرت، سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر کتنے بچے ابھی فی الوقت پڑھ رہے ہیں؟ کیا باہری طلبہ ہی صرف پڑھتے ہیں یا عوامی جو یہاں علاقے کے بھی بچے پڑھنے آتے ہیں؟ اس ادارے میں تقریباً 350 سے زائد بچے زیر تعلیم ہے، اور علاقائی بچے بھی ہیں، بیرونی طلبہ بھی ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی بہتر طریقے سے یہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہے۔ کہاں تک پڑھائی ہو رہی ہے آپ کا؟ یہاں درجہ حفظ سے لے کے شعبہ فضیلت تک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے بعد بچوں کی فضیلت کی تکمیل کے بعد مختلف یونیورسٹیوں میں بچوں کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ جی، ابھی آپ کے یہاں اگر داخلہ کوئی کروانا چاہے تو کس طریقے سے داخلہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یا پھر ایسے ہی داخلہ ہو جاتا ہے؟ داخلے کے لیے شوال میں 15 شوال کو ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں کینڈیڈیٹ کی شرکت لازم ہوتی ہے، تحریری امتحان ہوتا ہے، اس کو پاس کرنے کے بعد ہی ایڈمیشن یہاں ہوتا ہے، اور اس کی تاریخیں محدود رہتی ہیں۔ اس بلڈنگ کا کیا نام ہے حضرت؟ ہم اس کے بارے میں جاننا یہ دارالعلوم غریب نواز کی سینٹرل بلڈنگ ہے، جس کی بنیاد 1995 میں رکھی گئی ہے علماء مشائخ کی موجودگی میں، اور نہایت ہی دیدہ زیب ہے۔ اس کی نقاشی اور طرز تعمیر بے حد عمدہ ہے، لاجواب ہے۔ ادھر سے گزرنے والے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے۔ ماشاءاللہ، دیکھیے راشٹریہ اردو سہارا کے صحافی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آج یہاں ہم خود انٹرویو لے رہے ہیں، یہ ہمارا بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ آپ حضور قائد ساتھ میں چلتے رہیں گے اس بلڈنگ کی طرف۔ حضور قائد ملت کے آپ شانہ بشانہ ہر وقت کھڑے رہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کی تعمیر کب ہوئی؟ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز اس ڈومریا گنج کی سب سے پہلے آپ جان لیجیے ایک شان ہے، اور جب حضرت ڈومریا گنج مرکز جہاں پر بقریدیہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس میں حضرت امامت بھی کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ وہ دور آپ نے دیکھا؟ وہ دور پھر حضرت نے وہیں سے ایک عزم کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور نکل کر اس بنجر زمین کو دیکھا تو آپ نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ ایک مرکز یہاں پر مسلک اہل سنت کا یہاں پر بنایا جائے، جس سے اس علاقے میں جو سنیت بہت کمزور ہو چکی ہے، یہاں پر اور مسلک کے لوگ حاوی ہو چکے ہیں، تو ہمیں ایک ادارے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے منصوبہ تیار کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد میں حضرت نے 1995 میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا، اس کے بعد میں لوگوں نے لاہی عمل تیار کیا، اور اس کے بعد میں اس بلڈنگ کے بارے میں ایک خاکہ تیار کیا۔ حضرت نے ایک پروگرام یہاں پر کیا، اور علاقے کے جو سنی اچھے لوگ تھے ان لوگوں کو مدعو بھی کیا۔ تو اللہ کا شکر تھا کہ علاقے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جو حضرت سوچے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ اتنے جلدی یہ تعمیر ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ تو اللہ کا شکر تھا کہ اس علاقے کے لوگوں نے اس بلڈنگ سے بڑی محبت کی ہے، اور حضرت کے ساتھ جب بھی حضرت نے آواز دی تو حضرت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر لوگ شامل رہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے نگاہوں سے دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس بلڈنگ میں کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ دارالحفظ بلڈنگ ہے، یہاں حفظ و قرات کی مکمل تعلیم دی جاتی ہے، طلبہ کے قیام گاہ کا بھی انتظام ہے، ان کے نہانے دھونے کا، اور اس کے علاوہ استنجا خانہ وغیرہ بھی معقول طریقے سے جو ضرورت زندگی ہے، جو حالات کے حساب سے چاہیے، وہ سارا انتظام یہاں دیا گیا ہے تاکہ بچے
बेहतर तालीम भी हासिल करें, सफाई के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये जो आपका इदारा है दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज़, क्या किसी इदारे से भी मुंसलिक करके रखा आपने? ये इदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज़ ने, चूँकि हुज़ूर क़ाइद मिल्लत का जहन बहुत ही आला था, वो कोशिश हर बार कुछ ना कुछ नया करने की करते रहते थे। उनका ये मिशन था और उनके ही मिशन को आगे बढ़ाते हुए उनके विसाल के बाद उनके मुहिब्बीन ने और ख़ासकर यहाँ के दानिश्वरान ने इस बात को महसूस किया कि इस इदारे को सिर्फ मदरसे ही तक महदूद न रखा जाए, बल्कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत थी इस बात की कि मुल्क के दीनी और मुमताज़ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनसे मुआदले किए जाएँ। ख़ासकर मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद या हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी और पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाने वाली यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से मुआदला किया, और उसका असर है कि आज बहुत सारे तलबा यहाँ से निकलकर बहुत सारे शोबाजात में वकालत है, इंजीनियरिंग है, यूपीएससी है, आईएएस वगैरह की भी तैयारियाँ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ज़माना देखेगा कि दारुल उलूम गरीब नवाज़ के तालीम याफ्तगान बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर दारुल उलूम गरीब नवाज़ के सहन में आकर दारुल उलूम गरीब नवाज़ की मिट्टी को सलाम करते हुए नजर आएंगे। तो आपको हज़रत ने बताया कि किस तरीके से क्या चल रहा है यहाँ, और ये मज़ार शरीफ बनी हुई है, तो हम मेरे ख़्याल से हुज़ूर क़ाइद मिल्लत थी कि मज़ार शरीफ होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म कर दें। हुज़ूर क़ाइद मिल्लत अली रहमा के विसाल के बाद आपके अहबाब और मुहिब्बीन का ख़ासकर ये मुत्तफ़क़ा तौर पे फ़ैसला हुआ कि हज़रत ने पूरी ज़िंदगी इदारे के लिए सर्फ़ कर दी है, तो आज उनके इंतकाल के बाद अगर इदारे से उनको दूर कर दिया गया तो कहीं ना कहीं बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, और यहाँ पर आने वाली नस्लें जो तालीम हासिल करने वाली हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, या ज़ायरीन में से जो भी हज़रात हैं आने वाले हैं, इस इदारे को देखने के बाद शायद ये ज़रूरत ना महसूस करें कि इदारे की तामीर किसने रखी है। इसका ख्याल करते हुए लोगों ने फ़ैसला किया कि हज़रत को इदारे से मुंसलिक रखा जाए, और इसके पेश नज़र आपके एक मुहिब ने, जिनका नाम इसी इलाके के हैं, हाशिम भाई है, उन्होंने अपनी ज़मीन का एक बेहतरीन हिस्सा हज़रत की मोहब्बत में हज़रत के मज़ार के लिए वक्फ़ करके ये ऐलान कर दिया कि हज़रत हमारी ज़मीन में आराम करेंगे और हमें ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि उनका आस्ताना यहाँ आबाद है, तामीर का काम चल रहा है, इंशाअल्लाह जल्द ही पाए तकमील को पहुँचेगा। हज़रत हम ये भी जानना चाहेंगे, इतना बड़ा जो किला हज़रत ने तामीर किया है, तो किस तरह मैनेजमेंट है इसका, किस तरह इसको चला रहे हैं आप लोग? क्या पहली तने बात तो हम तनहा ये कोई बता चला दें- रहा है या उसके पीछे कोई टीम है? ये बता दें कि ये इदारा खालिस किसी एक शख्स की वजह से नहीं आबाद है। ख़ासकर ये इदारा अगर रूहानी एतबार से देखा जाए तो सुल्तानुल हिंद सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान और जो दूसरे बुजुर्गान दीन हैं जिनके मज़ारात जगह जगह आबाद हैं, उनके फ़यूज़ व बरक़ात का मरकज़ रहा है, और ये इशारे ग़ैबी का एक बेहतरीन शाहकार है। इसीलिए इतनी छोटी सी मुद्दत में इदारा उस जगह आज क़याम कर रहा है जहाँ बड़े बड़े इदारे अब तक पहुँच नहीं पाए, और ये इदारा किसी जो है बैरूनी ममालिक के आमदनी की वजह से नहीं चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि इस इलाके के मुखय्यरीन चाहे अमीरी की ज़िंदगी काट रहे हों या गरीबी की ज़िंदगी काट रहे हों, हर एतबार से यहाँ के लोगों का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि हम एक लुक़मा कम खाएँगे, एक रोटी कम खाएँगे, लेकिन दारुल उलूम गरीब नवाज़ को अपना ताउन हत्तल इम्कान हर मौके पर, चाहे तामीरी मामला हो, तालीमी मामला हो, जिस भी एतबार से दारुल उलूम गरीब नवाज़ से आवाज़ आई, हम इसके लिए कमर बस्ता रहेंगे। ख़ासकर मुंबई वग़ैरह के मुहिब्बीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो इसके तामीर में थे, जो इसकी ख़रीदारी में थे, जिन्होंने इसको बनते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा, वो आज अपनी कब्रों में हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस की बहारों में उन्हें जगह नसीब फ़रमाए। और ये इदारा इसी इलाके के ख़ास ताउन से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं, जिसको ये महसूस होता है कि इदारे को डोनेट करना चाहिए, वो खुशी से इदारे के अकाउंट में भेजते हैं। इस तरह से ये इदारा तो इदारे का चल अकाउंट रहा है। जी, दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज़ के नाम से है या किसी और के नाम से है पर्सनल? ये दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज़ टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से ही अकाउंट है इदारे का, जो मुख्तलिफ़ बैंकों में है, और उसमें लोग शिरकत करते हैं और अपना ताउन पेश करते हैं। अभी आपके सामने हमने आपको दिखाया ये सेंट्रल बिल्डिंग, इससे पीछे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो है अभी नए सिरे से तामीरी मराहिल से गुज़र रहा है, आप देख सकते हैं। तो हज़रत इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि क्या इस कुछ बच्चे ज़्यादा होने की वजह से जो है हॉस्टल बढ़ाए जा रहे हैं या क्या वजह है? जी, बच्चों की कसरत है, और आप अगर बच्चों के सोने के टाइम पर कभी आएंगे तो आप देखेंगे आपकी आंखें भीग जाएंगी, इसलिए कि बच्चों की कसरत की वजह से कमरे नाकाफ़ी पड़ रहे हैं,
काम पूरा हो नहीं पा रहा है। जितने बच्चे हमारे पास हैं उतनी जगह अभी नहीं है, कमरों की किल्लत है, इसलिए ये एक और बिल्डिंग की तामीर शुरू है, जारी है। मैं अहले खैर हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात इस दीनी काम में शरीक हों ताकि दारुल उलूम का काम आसान हो सके। और आज 350 बच्चे हैं, ये तादाद बढ़कर 550 पहुँचे, 750 पहुँचे। इसके लिए हमें और आपको हमेशा कमर बस्ता रहना चाहिए कि जब भी तामीरी मराहिल यहाँ शुरू हों तो दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लेकर दारुल उलूम के हर तामीर को आसान बनाया जाए। दारुल उलूम गरीब नवाज़ की ये अपनी शान रही है, ये खसूसियत रही है कि लॉकडाउन के ज़माने में जबकि लोग खाने के लिए तरस रहे थे, रोटियों के लिए तरस रहे थे, दवाओं के लिए बिलख रहे थे, कोई इंतज़ाम नहीं था, लोग परेशान थे, आना चाह रहे थे, सवारियाँ नहीं थी, ऐसे माहौल में भी दारुल उलूम गरीब नवाज़ ने अपने इन असातिज़े किराम को, जिन्होंने सालों साल मेहनत करके अपना खून जिगर जलाकर सादे बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया, उनके दिल की तख्ती पर हदीस रसूल की इबारतें सबत फरमाई, उन्हें बेहतर बनाया, दीन का सिपाही बनाने का आज़म किया और वो हत्तल इम्कान अपनी मेहनत में कामयाब रहे। ऐसे भयानक माहौल में जबकि तरह तरह से हर इदारों से, हर शोबे से तनख्वाहें बंद हो रही थीं और लोगों को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, ऐसे माहौल में हुज़ूर क़ाइद मिल्लत अली रहमान ने अपने अहबाब की मीटिंग बुलाकर मशवरा करके ये फ़ैसला लिया कि दारुल उलूम गरीब नवाज़ अगरचे इस वक्त इदारा बंद है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इदारे के जो मुलाजिमीन हैं, जो अपने घरों पर बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, उन्हें दवाओं की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, उन्हें ग़िज़ाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। ख़ासकर 2-2 रमज़ान गुजरा है लॉकडाउन में, उस मौक़ों पर हुज़ूर क़ाइद मिल्लत ने ये अहम फ़ैसला लिया कि अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें बंद न की जाएँ बल्कि तनख्वाहें जारी रखें। इस एतबार से भी दारुल उलूम गरीब नवाज़ और इदारों में मुनफरिद था और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अपने कारनामों से ये पहचाना जाता रहेगा। माशाल्लाह नाज़रीन इकराम, जैसा कि हज़रत ने बताया आपको कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और ये इदारा किन किन मराहिल से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है और बहुत कम मुद्दत में ये इदारा काफ़ी नाम कमा चुका है और इसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। उसकी वजह ये भी है कि यहाँ के निकले हुए प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में जो है अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन आपसे गुजारिश यही है कि आप हज़रात जो है दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज़ बैदौला को खूब ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कीजिए।